All right, good morning, students. Today we are going to be learning a new poem in English called The Height of the Ridiculous. This poem is written by Oliver Wendell Holmes. All right, Oliver Wendell Holmes has written this poem. This poem is supposed to be a very comedic, a very funny poem. All right, ये एक funny poem है जिसमें बहुत सारे exaggeration, बहुत सारे hyperboles है. There's a lot of figurative language जहाँ पे जो लिखा गया है उसका मतलब कुछ और है. All right, and when you read this poem, it's supposed to invoke feelings of happiness, feelings of funny laughter in the reader. All right, feelings of laughter in the reader. All right, so it's supposed to be a very funny, very wacky, weird poem. बहुत ही मतलब अजीब है ये poem जो पढ़ने में शायद तुम्हें डायरेक्टली ना हंसा सके, लेकिन द पोएम इटसेल्फ इज सो वियर्ड कि तुम्हें उसमें ही हंसी आ जाएगी. ऑलराइट, so quickly what we are going to do is I'm going to read the poem, all right, and I want all of you to just listen first. एक बार तुमने सुन लिया पोएम का एक्सप्लेनेशन सुन लिया, देन आई वांट यू टू रीड इट ऑन योर ओन. फिर वीडियो को बंद करके खुद से ही टेक्स्ट बुक को रीड करके इसको समझने की कोशिश करो, and then answer the questions that I give you at the end of the video. All right, so let's start with the poem The Height of the Ridiculous. All right, I wrote some lines once on a time in a wondrous merry mood, and thought as usual men would say they were exceeding good. Alright, so what's the poet saying in the first four lines? I wrote some lines once on a time. I wrote some lines once on a time. इससे मुझे पता चलता है कि बहुत सालों पहले उसने कुछ तो lines लिखे हैं. He had written something in a wondrous merry mood. In a wondrous merry mood का मतलब क्या है? Wondrous यानी क्या है? मतलब wonderful, बहुत ही happy. Alright, in a happy merry mood, in a delightful mood. And thought as usual men would say, and I thought, मतलब पोएट ने सोचा कि as usual men would say they were exceeding good. लोग क्या सोचेंगे उसके लाइंस के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. एक्सीडिंग यानी मतलब उम्मीद से ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ को पार करना. एक्सीडिंग यानी किसी चीज़ को पार करना, मतलब सबके उम्मीद को पार करके जाएगा ये राइटिंग, ऐसा वो बोल रहा है. राइट, they were so queer, so very queer. I laughed as I would die, albeit in a general way, a sober man am I. Alright? Now, in the next four lines, what is the poet saying? कि they were so queer. जो lines थे वो बहुत ही queer थे. Now, what's the meaning of queer? Something that is a little different. Alright? Something that is a little off, that's not very normal. All right, so they were so queer, so very queer. I laughed as I would die. पोएट को भी पता था कि उसके राइटिंग में किसी को हंसाने का बहुत ज़्यादा पावर था. ऑलराइट, सो ही न्यू कि दिस राइटिंग इज़ वेरी वेरी वियर्ड. ही न्यू दिस राइटिंग, ये राइटिंग नॉर्मल नहीं है या फिर इट्स डिफरेंट. ऑलराइट, एंड ही वाज लाफ, ही सेड आई लाफ्ड एज आई वुड डाई. ऑलराइट, albeit in a general way a sober man am I. albeit का मतलब क्या है कि although, लेकिन जनरली अभी मैं ये अपना राइटिंग पढ़ के तो हंस रहा हूँ, लेकिन जनरल वे में मैं सोबर हूँ. अ सोबर मैन एम आई. सोबर का मतलब क्या है? सोबर का मतलब है कि मैं ज़्यादा हंसता नहीं हूँ. आई एम वेरी नॉर्मल, आई एम वेरी कंट्रोल्ड, वेरी वेल मैनर्ड. ओके, so these are the meaning of the next four lines. Now, I called my servant and he came. How kind it was of him to mind a slender man like me, he of the mighty limb. Alright? I called my servant and he came. मतलब अभी क्या किया पोएट ने? उसने अपने सर्वेंट को बुलाया and he came. And the poet is thinking how kind it was of him कि सर्वेंट इतना जल्दी आ गया. वो, so he's feeling very happy that okay, my servant is so kind towards me कि मैंने जैसे बुलाया वैसे आ गया. Alright, to mind a slender man like me, he of the mighty limb. Alright, तो उसका सर्वेंट को क्या बोल रहा है कि वो इसलिए थैंकफुल है, कि वो इसलिए सोच रहा है कि सर्वेंट बहुत ही काइंड है क्योंकि पोएट जो है वो बहुत स्लेंडर मैन है. ही इज़ अ वेरी स्लेंडर मैन. पोएट जो है बहुत ही थिन मैन है, लेकिन जो सर्वेंट है ही इज़ ऑफ द माइटी लिम्ब. यानी सर्वेंट थोड़ा सा, you could say servant is a little more healthy, he's a little more fat. All right, so the poet is saying कि ये इतना मतलब फैट होने के जगह पे, अनहेल्दी होने के जगह पे भी, him being so unhealthy, him being so fat, उसके बावजूद वो उसी दौरान, उसी जल्दी, उसी मोमेंट में आ गया जिस मोमेंट में पोएट ने उसको बुलाया. सो द पोएट फील्स दैट ही इज वेरी काइंड. ऑलराइट, these to the printer I exclaimed, and in my humorous way
I added as a trifling jest, there'll be the devil to pay. Alright? These to the printer, अभी देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है, तो मतलब यहाँ पे पोएट बोल रहा है. ऑलराइट, These to the printer I exclaimed, पोएट बोल रहा है. राइट, These to the printer मतलब इन राइटिंग्स को प्रिंटर के पास लेके जाता कि प्रिंटर इनको प्रिंट करके इनको बुक में बना के हम फिर बेच सकते हैं. राइट, सो these to the printer I exclaimed, and in my humorous way, humorous यानी funny. ऑलराइट, humorous यानी funny. So in my humorous way I added as a trifling jest, I added as a trifling jest. trifling यानी एक बहुत ही सिंपल या फिर बहुत ही कम मीनिंग वाला जोक में उसने ऐड किया. व्हाट डिड ही ऐड? देल बी द डेविल टू पे. अगर तुमने ये काम नहीं किया तो शैतान, डेविल जो है वो तुमसे आके भरपाई लेगा. ऑलराइट, तो यू बेटर डू दिस वर्क, नहीं तो शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा. एंड शैतान ये नाउ देल बी द डेविल टू पे, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान ऐसा कोई भूत या कोई अलग सा मॉन्स्टर आके उसको खा जाएगा. नो, देल बी द डेविल टू पे मतलब पोएट उस पर गुस्सा हो जाएगा. ऑलराइट, पोएट शैतान की तरह उसके पीछे पड़ जाएगा. ऑलराइट, दैट्स व्हाट ही मीन्स बाय देल बी द डेविल टू पे. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ फिगरेटिव लैंग्वेज कि देल बी द डेविल टू पे का मतलब क्या कि अगर वो सर्वेंट ने वो काम नहीं किया तो पोएट जो है उसके पीछे शैतान की तरफ पड़ जाएगा. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट दिस लाइन मीन्स. ओके, मूविंग ऑन. He took the paper and I watched, and I saw him peep within. At the first line he read, his face was all upon the grin. Sorry about that. So he took the paper and I watched. Alright, he took the paper मतलब उसने वो पेपर लिया जिसमें पोएट ने लिखा था. एंड आई वॉच्ड, पोएट ने उसको ध्यान से देख रहा है कि अच्छा ये मेरा पेपर ले रहा है. एंड सॉ हिम पीप विद इन, पोएट ने देखा कि जो सर्वेंट है वो उसके उस राइटिंग को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा देख रहा है. राइट, एंड एट द फर्स्ट लाइन ही रेड, हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रिन. एट द फर्स्ट लाइन ही रेड यानी सर्वेंट ने जो पहला लाइन पढ़ा, हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रिन. ऑल अपॉन द ग्रिन का मतलब है कि वो बहुत ही स्माइल कर रहा था. राइट, द सर्वेंट वॉज स्माइलिंग. ही रेड द नेक्स्ट, the grin grew broad and shot from ear to ear. Alright, उसने अगला लाइन पढ़ा, the grin grew broad. grin का मतलब क्या है? स्माइल. Alright, हम लोग कैसे ऐसा स्माइल करते हैं, लेकिन अभी उसने नेक्स्ट लाइन पढ़ा तो उसका ग्रिन ऐसा और ज्यादा हो गया. Alright, so what happened is the grin grew broad and shot from ear to ear. वो इतना बड़ा स्माइल था उसका कि ऐसा लग रहा था कि दोनों कान तक, ये स्माइल का ये कान तक जाएगा, ये स्माइल का ये कान तक जाएगा, ऐसा उसका स्माइल लग रहा था. Alright, he read the third, a chuckling noise and now began to hear. He read the third, a chuckling noise and now began to hear. इसका मतलब क्या है कि जैसे उसने थर्ड लाइन पढ़ा तो एक हंसने की आवाज आ रही थी अभी पोएट को. ही कुड हियर की एक हंसने की आवाज आ रही है. Alright, now the fourth he broke into a roar, the fifth his waistband split, the sixth he burst 5 buttons and tumbled in a fit. Now this is the verse which has the most amount of hyperbole. I want you to pay attention to this. The fourth he broke into a roar. फोर्थ लाइन पढ़ने पे he broke into a roar. roar यानी कैसे होता है, लाइन कैसे रोर करता है, जोर जोर से हाउ हाउ मुंह खोल के, उसी तरह से वो जोर जोर से मुंह खोल के हंसने लग गया था. The fifth his waistband split. Waistband is मतलब something is like a sash that you tie on your waist. It's something like a belt. All right, the fifth लाइन पढ़ने पे उसका वो बेल्ट भी टूट गया. वो इतना जोर जोर से हंस रहा था, उसका बेल्ट जो है, वेस्ट बैंड है, टूट गया. द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 buttons. सिक्स लाइन पढ़ने पे वो इतना जोर जोर से हंस रहा था और इतना पागलों तरह वो गिर रहा था कि उसके 5 बटन शर्ट के फट गए. ऑलराइट, दैट्स व्हाट दिस पोएट इज सेइंग. एंड टम्बल्ड इन अ फिट. ऑलराइट, और वो गिर के टम्बल करने लग गया. ऑलराइट, टम्बल यानी ही फेल डाउन ऑन द फ्लोर एंड ही वाज रोलिंग ऑन द फ्लोर. इतना हंस रहा था वो, इतना ज़्यादा अजीब लगा उसे पोएट का राइटिंग. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस टेलिंग अस कि उसका सर्वेंट जो है, उसका सर्वेंट इज नॉट सो वेल एजुकेटेड. उसका सर्वेंट को नहीं पता कि कोई चीज़ को कैसे लिखते हैं. द सर्वेंट इज नॉट अ राइटर. लेकिन सर्वेंट ने पढ़ के, सर्वेंट ने उसके वर्क को पढ़ के उसको इतना अजीब लगा कि वो इतना ज़्यादा हंसने लग गया. इसका मतलब क्या कि पोएट का
पोएट का राइटिंग का क्वालिटी कैसा है, इज इट गुड और इज इट बैड, ऑलराइट. ऑब्वियसली व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि पोएट का राइटिंग उस समय पे बहुत खराब था, ऑलराइट. और उसी खराब राइटिंग को पढ़ने की वजह से सर्वेंट हंसने लग गया. 10 days and nights with sleepless eye, I watched that wretched man, and since I never dare to write as funny as I can. Alright? 10 days and nights with sleepless eye. 10 दिन और 10 रात मैं सोया नहीं. Alright? Why? Because with sleepless eye. Alright? वो सोया नहीं इसका मतलब वो चैन से नहीं सो पाया. Obviously he slept, लेकिन he could not sleep peacefully. Why? Because I watched that wretched man. Wretched कौन है? Wretched का मतलब है कि I watched the person in a helpless condition. जिसको मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, जिसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता. Alright? I watched that wretched man, and since I never dare to write as funny as I can. And since I never dare to write as funny as I can मतलब मैंने उस दिन से छोड़ दिया कि मैं फ़नी चीज़ें लिखने की कोशिश नहीं करूँगा. क्योंकि ये बंदा अगर इतना हंसने लग गया, इतना मतलब गिर गिर के हंसने लग गया, एंड ही कुड नॉट स्टॉप एट ऑल, इसका मतलब या तो मेरा राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ़नी हूँ. लेकिन ऑब्वियसली कोई भी उस सेकंड ऑप्शन को नहीं कंसिडर करेगा. लोग सोचेंगे कि अच्छा मैंने कुछ लिखा और लोग उस पर ही हंस रहे हैं और इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, तो मेरा राइटिंग तो ख़राब ही होगा, राइट. So that's why Oliver Wendell Holmes said ki, and since that day I've never dared to write as funny as I can. Alright. That brings us to the end of the poem, students. This poem, as I said, is supposed to be a funny poem, comedic poem. We explored the different hyperboles, we explored the different meanings of certain words here. Now, what I want you to do is, alright, quickly answer these two questions in your notebook. But before you do that, फर्स्ट रीड द पोएम ऑन योर ओन. पहले खुद से पोएम को पढ़ो अपने टेक्स्ट बुक को यूज करके, अपने PDF को यूज करके, एंड देन आंसर दीज टू क्वेश्चन. द फर्स्ट वन बीइंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस. ऑलराइट, अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर एज पर द पोएम. ऑलराइट, तो इसका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस निकालो. एंड सेकंड इज फॉर्म पेयर्स फ्रॉम ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड 2 ऑफ योर ओन. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इस टेबल को कंप्लीट करो. पोएम में से जो राइमिंग वर्ड्स है पहले कॉलम के लिए, उसको ढूंढ के फ्रॉम द पोएम वाले कॉलम में लिखो. एंड देन मोर ऑफ योर ओन में खुद के कोई अगर राइमिंग वर्ड्स है जो इन वर्ड से राइम करते हो, उसको भी ऐड कर दो. ऑलराइट, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस आई वांट यू टू सॉल्व टुडे. स्टूडेंट्स, this brings us to the end of our explanation for this poem. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. Send me a text, send me a voice note, and I will answer your question. Have a nice day, all of you.